नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह। आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, अस्तलबोर, रोहतक, हरियाणा. Today I will discuss with you about principles of toxicology, poisoning treatment. First of all, I am thankful to my son Mr. Ashish Saini for typesetting and media recording of this presentation. First of all, let us discuss about toxicology. Toxicology is study of poisons. Poison is a toxic substance or chemical which is harmful, and death of patient can occur due to this substance. This poison may be exposed to the patient accidentally, for suicide purpose, occupationally, or criminally. Poison may be drugs or chemicals. Poison types. There are different types of poisons. First of all, let us have a look at the drugs. Abuse or misuse of drugs may lead to the toxic effect, or it may convert into poison. Various types of you can say overdosage of drugs leads to death. Like antidepressants are there, analgesics are there, chloroquine is there, antidiabetic drugs are there, alcohol is there, carbon monoxide, atropine, opioids. So many drugs are there, and lot of other drugs are also there which can be used or which can act as a poison. Snake bite is there. Then organophosphate pesticides or insecticides are there. Then heavy metals poisoning may be there, or there may be a poisoning effect due to alkalis or acids. Coming to the poison diagnosis. When a patient comes for the treatment of poisoning to the nursing home or to the doctor will try to or before doctor, nurses, if attending staff is nurse is there, or pharmacist is there, whosoever will be attending the patient, he will try to take the history of the patient. What are the things that he has taken? If any person is there who accompanies the patient, so doctor or nurse or pharmacist can inquire from them. Or if the patient is conscious, then they will try to have a discussion with him about the history, what he has taken, what he has eaten, or what are the things or factors, or which leads to the before coming to the clinic of the doctor or the hospital, what happens. Then whatever he gives, or the relative gives, or the patient gives the history, then whatever the signs and symptoms that the doctor observes, if that is clear, then they can shortlist the poison. This may be the poison, or doctor can go for the toxicology lab tests for the diagnosis of poison, which poison leads to this effect. So coming to the general principles of poisoning treatment. So the first step is the supportive treatment. So that is the ABC of the treatment. We have to support, we have to take care the vital organs of the body of the patient. Like they have to check the airways, whether जो पेशेंट है वो ठीक से सांस ले पा रहा है कि नहीं पा रहा, कहीं
जो है म्यूकस तो नहीं है, या जीभ रोल इन तो नहीं हो रखी, जीभ तो नहीं, मतलब सांस लेने में उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर दिक्कत है तो जो है ऑक्सीजन वगैरह लगाने की ज़रूरत है तो अकॉर्डिंगली दे टेक केयर। देन हिज ब्लड प्रेशर, पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर लिया जाता है, दैट इज़ द बी। अगर उसका ब्लड प्रेशर कम है तो अकॉर्डिंगली उसका बीपी इंक्रीज के लिए देखा जाता है। अगर उसका बीपी हाई है तो उसको लो करने के लिए, तो वट एवर इज द रिक्वायर्ड treatment that is taken care. Third is the convulsions, that is whether the poison has some effect on the brain. If the patient is having convulsions, मिर्गी के दौरे के टाइप फिट्स वगैरह तो नहीं पड़ रहे, तो ये ABC बेसिकली जो है वो देखी जाती है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो अकॉर्डिंगली जो है ट्रीटमेंट, मतलब बॉडी फ्लूइड वगैरह ठीक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सपोर्टिव फर्स्ट इमीडिएट जो अटेंड करता है डॉक्टर या हॉस्पिटल में है, तो ये पहली चीज़ जो देखी जाती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइजनिंग ट्रीटमेंट में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये देखा जाता है कि पेशेंट शुड हैव द मतलब प्रिवेंशन ऑफ फर्दर एक्सपोजर। पेशेंट को और ज़्यादा एक्सपोजर ना हो उस पॉइजन का। तो अगर वो मान लो पेशेंट जहाँ पे उसका एक्सीडेंट है हो रखा है, जहाँ पे कोई उसको पॉइजन का एक्सपोजर हो रखा है, या उसके जो उसने क्लोथ्स पहने हुए हैं, मान लो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहा था, बेहोश हो गया, या उसको चक्कर आ रहा है, या कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो गया, तो उस वजह से उसको जो है वह एक तो वहाँ से हटाना है जहाँ पे कोई लीकेज वगैरह है, गैस की लीकेज है, या कोई और जो भी, अगर वो वहाँ पे एक्सपोज हो रहा है, अगर वो वहाँ से ले आए हैं और उसने कपड़े वही पहने हुए हैं, तो कपड़ों में इंसेक्टिसाइड्स का वो है, या वो कोई भी एसिड है या अल्कली है या कुछ भी है जो उसके बॉडी के ऊपर है, तो वहाँ से उसके क्लोथ्स वगैरह उसको रिमूव करने हैं ताकि उसको जो फर्दर एक्सपोजर है वो ना हो। और जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उसको वॉश करते हैं, जैसे कपड़े हटा दिए, उसको जो बाकी बॉडी है उसको वॉश किया ताकि पॉइजन वहाँ से हट जाए। आइज़ वगैरह को प्रॉपर वॉशिंग करते हैं, अगर आइज़ में जो है उसको दिक्कत हो रही है, एक्सपोजर हो रहा है। अगर पेशेंट वेक है, अलर्ट है, तो उसने मान लो कुछ पॉइजनस चीज़ खाई हुई है, तो उसको जो है वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं बाय गिविंग हिम द आइपेकैक सिरप, या एपोमॉर्फिन का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई एसिड की वजह से है या एल्कली की वजह से या कोरोसिव मटेरियल है जो कि बाहर निकलेगा तो फूड पाइप और को डैमेज कर सकता है, तो उस केस में वॉमिटिंग को अवॉइड करते हैं। नहीं तो जो है वॉमिटिंग के थ्रू जो अनयूज्ड पॉइजन है उसकी बॉडी में उसको निकालने की कोशिश की जाती है। अगर वो अनकॉन्शियस है तो गैस्ट्रिक लवाज की जाते हैं, जिससे कि उसका जो स्टोमक है उसकी वॉशिंग करके उसको वहाँ से जो अनएब्जॉर्ब्ड पार्ट है पॉइजन का वो वहाँ से उससे हटाने की कोशिश की जाती है। अगर नहीं पॉसिबल होता तो फिर एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल वे कि वो जाके स्टोमक में कोई भी जो पॉइजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी जो फर्दर एब्जॉर्प्शन है वो रुक जाती है। कमिंग टू द थर्ड, दैट इज़ द रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन। जो बॉडी में पॉइजन एब्जॉर्ब हो गई या चली गई, एक तो हमने सेकंड स्टेप में कोशिश की कि भाई जो अनएब्जॉर्ब्ड है उसको हम हटा दें। सेकंड इसमें हमने कोशिश की कि जो एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है उसको हम बॉडी से बाहर निकालें। दैट में बी डायलिसिस में बी यूज, दैट इज हीमोडायलिसिस में बी यूज्ड, और we can go for the urine alkalinization by giving the sodium bicarbonate और other drugs, ताकि जो उसकी एक्सक्रीशन है पॉइजन की वो फास्ट हो जाए और बॉडी से वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, ताकि उसका जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो कम से कम उसमें पेशेंट को अफेक्ट करे। चौथा है एंटीडोट्स। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइजनिंग ट्रीटमेंट में फोर्थ जो ट्रीटमेंट का स्टेप है दैट इज़ द एंटीडोट।
अब जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट ने फीडबैक दिया है या रिलेटिव्स ने फीडबैक दिया, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आए हैं उसको लेके, तो अगर पॉइजन आइडेंटिफाई हो जाती है तो फिर बेस्ड ऑन द साइंस एंड सिम्टम्स जो है स्पेसिफिक एंटीडोट दिया जाता है, क्योंकि जो मोस्ट कॉमनली यूज पॉइजन्स हैं उनके एंटीडोट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में, या जो है ला के एंटीडोट उसको दिया जाता है, स्पेसिफिक एंटीडोट इज गिवन। ये एंटीडोट जो है उसको क्या करेगा, पॉइजन को एंटीडोट विल न्यूट्रलाइज, या तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, या उसका जो रिसेप्टर जहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो रहा है वो अपना कोई साइड इफेक्ट दिखा रहा है, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा ताकि वो कंबाइन ही नहीं कर पाएगा, तो जो साइड इफेक्ट है या टॉक्सिक इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा, या उसका जो मेटाबॉलिज्म है उसको एक्सेलरेट कर देगा, या उसका जो है मेटाबॉलिज्म इनहिबिट कर देगा ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना बॉडी से बाहर निकल जाए। सो दैट इज द फोर्थ पार्ट। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि बिकॉज कहते हैं कि जो है हम अगर ध्यान रखें तो एक्सीडेंट अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइजनिंग ट्रीटमेंट में एक जहाँ पे भी जैसे घर में है या कहीं पे भी है, तो जो मेडिसिन्स हैं या पॉइजन्स हैं उनको बड़े ही सेफली हैंडल करना चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए। कोई ऐसा पेशेंट है, मान लो कोई डिप्रेशन का मरीज है या कोई ऐसा मरीज है जो कि दवाइयाँ ले सकता है, तो उससे दवाइयाँ उतनी ही दवाई की डोज उसके पास होनी चाहिए जिससे कि टॉक्सिक इफेक्ट ना हो, 1 डोज या 2 डोज हो उसके पास। और नहीं तो जो है दवाइयाँ उसमें कहीं ऐसी जगह सिक्योर प्लेस पे रखना चाहिए जहाँ पे ताला बंद करके रखा हो, या जो छोटे बच्चे हैं उनके जो एक्सेस है वो वहाँ ना कर सकें, क्योंकि बच्चे भी एक्सीडेंटली ओवरडोसेज ले सकते हैं। सो प्रिवेंट जो मेडिसिन हैं वो ऐसी जगह रखी जाए जहाँ से एक्सेस टू चिल्ड्रन शुड बी प्रिवेंटेड, सेफ प्लेस पे रखना चाहिए। और अगर कहीं जैसे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, मान लो इंसेक्टिसाइड है, या तो प्रॉपर सेफ्टी गियर वगैरह पहन के, कपड़े वगैरह पहन के, और प्रॉपर चीज़ें जो है, या जो फैक्ट्री में हैंडलिंग है केमिकल्स की, तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं, एस्टेब्लिश्ड सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए जिसके कारण ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर पॉइजन्स का ना हो। तो हम इस तरह से इसको अवॉइड कर सकते हैं, पॉइजन्स को, एक्सपोजर को। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। दिस इज द जनरल प्रिंसिपल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। In the end, I am thankful to my son, Mr. Ashish Saini, for typesetting and media recording of this presentation. Thank you very much. Good day. Best of luck.